तुम्हारा ओवरऑल मूवी के बारे में लाइक व्हाट इज योर रिव्यू? डू यू लाइक इट? डू यू नॉट लाइक इट? You watch the movie if not for anything else for Pratik Babbar. Hello, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of the 3 a.m. Call, a podcast where two friends from opposite ends of the Indo-Pak border get together to give to you the female perspective and talk about their opinions, their experiences, their rants, their vulnerabilities, etc., etc., etc. We are back after a very, very, very long break. पता नहीं, I don't remember the last time. महीने से ऊपर हो गया होगा. आराम से. And in that break we actually physically met each other also. और उसके बाद हम वापस स्क्रीन्स के पीछे चले गए पॉडकास्ट के लिए. I think there is we can prove them that how did we meet. देखो हमारे कपड़े एक्सचेंज हो गए हैं. दैट जो आशिमा ने कुर्ता पहना है वो मैंने एक पॉडकास्ट कौन सी एपिसोड में पहना था, आई डोंट रिमेम्बर कौन सी एपिसोड. ओह आई थिंक वो वाली थी पीरियड्स वाली जो एपिसोड थी, उसमें मैंने ये कुर्ता पहना था जो तुमने पहना है, और फिर मैंने तुमको ला के दिया और अब वो उधर चला गया है. और ये वाला कुर्ता मैंने ही पहना हुआ है. उसमें हमारी जो पिक्चर है ना, जो पहली पिक्चर हमने इंस्टा पे अपलोड की थी, द कमिंग सून वाला, हाँ, उसमें मैंने एक कुर्ता पहना था. वो पिक्चर मलेशिया की है और अब ये इधर मेरे पास साथ में रहा करते थे वो ज़माने when we used to live together. हाँ. उस वक्त मारा था मैंने, अब मैंने परमानेंटली हथिया लिया है ये कुर्ता. Anyways, okay, so do you want to tell them what we are going to discuss today? हाँ, तो we watched a movie called Cobalt Blue. Some of you might have heard of it, some of you might not have heard of it. I hadn't heard of it. Ashima is the literary person, so she had heard of it. It's based on a novel, and the plot is quite interesting. It's a Marathi novel. मुझे all this while लगा था कि English novel है. It's a Marathi novel. And also the writer of the novel and the person who directed the movie or produced the movie, same person. Okay. I forgot director है कि producer है. I think director. Same person who wrote the novel and the person who made the movie. So do you want to tell them about the... So it's basically a queer story about a boy who kind of falls in love with his paying guest, और फिर उसे spoiler alert, उसे पता चलता है while he's having this affair with his upstairs neighbor, अचानक से एक दिन उसकी बहन भाग जाती है उस ही neighbor के साथ. So that is basically the plot. और उसके अंदर what the interesting things about this movie are, the queer representation, the emotions and mindsets of gay people, family dynamics, desi family dynamics, and also जो उसका बहन का कैरेक्टर होता है उससे we understand the treatment of girls and women and family expectations around them. ठीक है. और मेरे ख्याल से द ओनली वेरी हेट्रोनॉर्मेटिव स्ट्रेट बंदा इज़ वो बड़ा वाला भाई, and you can clearly see the difference between his treatment and how the two other siblings are kind of alone and find comfort in each other's company. Anyways, so we're going to be discussing all that. Also, Ashima, do you want to... Also, the movie is very similar. Not the whole movie, but the starting of the movie is very similar to Call Me by Your Name. कॉल मी बाय नेम में तो ऐसा ही होता है ना, उसके पापा का एक स्टूडेंट होता है जो आके उसके घर में रह रहा होता है एंड देन दे स्टार्ट एन अफेयर. और काफी कैरेक्टर. I haven't seen Call Me by Your Name. Okay. Sorry. Okay. I know it was on my list. मैं अभी तक पहुंच ही नहीं. शालमे नहीं देखा, टिमोथी शालमे को नहीं देखा तुमने. But anyway, the movie is very much not very much similar. Call Me by Your Name में भी ऐसा ही होता है that he falls in love. Like he actually falls in love with this person. और वो पेइंग गेस्ट नहीं होता है, वो उसके पापा का एक स्टूडेंट होता है, स्कॉलर होता है. तो वो आया होता है उनके समर हाउस में. आई थिंक इट इज समवेयर इन सम लाइक लिटिल विलेजेस ऑफ इटली, एंड देन दे स्टार्ट दिस अफेयर. सो द अफेयर इज ऑल्सो नॉट लाइक वेरी अफेयरिश बट काफी वन साइडेड सा होता है. ही स्टार्टिंग टू एक्सप्लोर हिज ओन सेक्सुअलिटी.
तो काफी कुछ कोबर्ट में भी ऐसा ही हुआ है ना, बिकॉज ही प्रतीक बब्बर इज द फर्स्ट रिलेशनशिप ही एवर हैड, राइट? या तो सो तुम्हारा ओवरऑल मूवी के बारे में लाइक व्हाट इज योर रिव्यू? डू यू लाइक इट, डू यू नॉट लाइक इट, व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक? मेरा ओवरऑल रिव्यू What? तो ये है कि वॉच द मूवी इफ नॉट फॉर एनीथिंग एल्स फॉर प्रतीक बब्बर. आई थिंक हम पॉडकास्ट भी इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज यू हैव अ क्रश ऑन प्रतीक बब्बर. तो Yes. तो मेरा ओवरऑल रिव्यू और रिकमेंडेशन तो मेरा ये वॉच द मूवी फॉर प्रतीक बब्बर. बट एनीवे जो कि साइड इट्स अ नाइस मूवी टू वॉच. और कभी कभी हो सकता है कि थोड़ी सी ड्रैग लगे, मतलब कभी ऐसे ऐसे मोमेंट्स है जब मेरे को वो ऐसा ड्रैग करी थी मूवी, स्पेशली जो उनके कुछ कुछ लव मेकिंग सीन्स हैं, बिकॉज यू हैव टू बी इन्वॉल्व विद एवरी सेकंड ऑफ द मूवी टू ग्रास्प द होल ऑफ द मूवी. अगर आप थोड़ा सा भी जोन आउट, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, अगर थोड़ा सा भी जोन आउट हो गए इट वॉन्ट मेक सेंस टू यू, बिकॉज काफी ऐसे बिटवीन द लाइन्स वाला पढ़ने वाला सीन है यहाँ पे. मतलब नॉट एवरीथिंग इज ऑन योर face, so you have to be like really into the movie to watch to understand the whole of the movie. तो कुछ कुछ चीजें moments ऐसे हैं जब ऐसे dragish feel होएगा, but when it comes down to representation, so yes, I like it that there was some kind of representation. This is 90s का India, so this was something very unheard of. तो overall अगर मुझे rating देनी है movie को तो I'll give it like a 7 on 10, something like that. So yeah, और मेरा तुमसे बात करने my के बाद experience is हाँ so तुमसे बात करने के बाद the point you mentioned, so that point like वो that stayed with me. So do you want to tell everyone about that point you? हाँ तो मैंने तो आई डोंट, ये मूवी रिलीज कब हुई है? रिसेंट है ना, ज़्यादा It's पुरानी तो very नहीं? recent, April 2022. It's very new. अच्छा ठीक है. तो इट्स नॉट लाइक कि अच्छा वी कांट, आई डोंट वांट टू एक्सक्यूज इट कि अच्छा ये पुरानी या बहुत अर्लियर रिप्रेजेंटेशन है इसलिए इट्स प्रॉब्लमैटिक. मुझे एज फार एज द मूवी इज़ कंसर्न्ड, मैं तो तुम्हें पता है आई एम अ बेसिक बिच, सो आई वॉच वेरी बेसिक स्टफ. तो ये बहुत ही मेरे लिए तो आर्ट्सी हो गया था, तो मैं थोड़ा सा बोर हो गई थी, आई बी वेरी ऑनेस्ट. हाँ वही अच्छा बट आई डू थिंक वो ड्रैग है मूवी थोड़ी सी, कुछ पॉइंट्स हैं. हाँ तो मुझे लगा एंड व्हाट रियली कैप्चर्स मी व्हेन आई एम वाचिंग समथिंग इज़ द कि वो कैरेक्टर से आपको कैसे रिलेट करवाते हैं या वो कैरेक्टर के इमोशंस कैसे डिस्प्ले करते हैं. सो नो मैटर हाउ डिफरेंट द कैरेक्टर इज़ फ्रॉम यू, देर आर सम इमोशंस दैट आर यूनिवर्सल. And like how will I relate to a gay man, right? But then there are universal emotions like loneliness, like being misunderstood, like you know things like that, like trying to understand your identity, जो हर किसी के साथ relate होते हैं. मुझे इस मूवी में maybe the book was better because usually books जो हैं emotions में बहुत पढ़ते हैं character के, तो you get connected. लेकिन मूवी में I think they didn't do a good enough job of displaying the emotions and like making you connect to them. लाइक स्टफ वॉज हैपनिंग और मुझे मतलब मूवी बहुत ही सरफेस लेवल लगी. लाइक आई डेंट फील लाइक दे यू नो कैप्चर्ड द ऑडियंस. और एक और मसला मेरा इस टाइप की मूवीज़ के साथ, ये जो आर्ट्सी टाइप की होती हैं और क्वेयर रिप्रेजेंटेशन के साथ, ये है कि भाई सेक्शुलाइजेशन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, द क्वेयर एक्सपीरियंस यू शो ऑन स्क्रीन इज जस्ट द सेक्शुअल एक्सपीरियंस एंड you are reducing them to your sexuality, and I think this movie was basically doing that. If whether you're queer, whether you're straight, जो भी हैं आप, whether you're a woman, whether you're a man, you're much more than your sexuality, right? जब हम भी फेमिनिज्म की या नई मूवीज़ की बात करते हैं, रिमेंबर हम कौन सा शो डिस्कस करके कह रहे थे कि भाई ये हो गया फेमिनिज्म के, ओ आई टॉक अबाउट हैविंग एन ऑर्गेजम या माई सेक्स लाइफ और बस ख़त्म. Like that is basically reducing you to your sexuality, and most movies, a lot of queer representation is about that. Matlab, what they are more than that, right? They are normal human beings that you and I can relate to in so many ways, right? तो I feel कि बस वो उस पर reduce कर दिया था, and it was very वो एक मतलब वो नहीं एक ग्लूमी सा माहौल बना के और एक वो म्यूजिक यूज करके कि ओह दिस इज समथिंग सो बिग दैट इज बीइंग डिस्कस्ड. इट इज इट वाज नॉट. आई थिंक मेरे दिमाग में से एक्सप्लेनेशन आ रहा है कि ना दिस ट्रोप इज वेरी मच यूज्ड व्हेन इट कम्स टू क्वेयर रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज ना लोगों को देखने की आदत नहीं है ये. तो आई थिंक इन दिस अर्ज
to familiarize people with this side of sexuality, that people are allowed to have this kind of sexual side also. I think this trope started with that objective, that to familiarize people with it. But लेकिन हाँ, I agree with you when you are saying कि कुछ इसीलिए मैंने पूछा था कि मूवी कब की है. क्या what मतलब इसलिए मैंने पूछा था मूवी, इसलिए मैंने पूछा था ये मूवी कब की है, ठीक है. क्योंकि अगर मूवी तो 6 साल 8 साल 10 साल पुरानी है तो आई अंडरस्टैंड, like I will give them space to evolve. will give media and movies place, but it is 2020. I think they could have done better, but I guess like that, book purani thi, or maybe book was like that. But was it book भी ज़्यादा पुरानी नहीं है, book is somewhere around 2014 or something like that, है ना. तो but I am wondering कि ना when it started, एक तो मुझे ढंग से I don't even जब मैं अगर trajectory trace करने की कोशिश कर रही हूँ कि when these kind of movies started coming into mainstream, तो क्या representation था मेरे दिमाग में आ नहीं रहा किस तरह का presentation. तो maybe I have to check on that. But another point I want to make is कि book है ना, book 2 parts में divided है, his और her. तो his is तने and her is उसकी बहन. तो लेकिन जो मूवी है, द मूवी इज द मेजॉरिटी ऑफ द मूवी इज फ्रॉम द बॉयज पर्सपेक्टिव. हाँ, है ना. लड़की उसकी बहन के बारे में तो हमको तभी पता चलता है कि जब वो भाग जाती है, फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी इट इज रिवील्ड कि उसका भी एक अफेयर था. एंड तुम मूवी में देखोगे तो मूवी में ऐसे मोमेंट्स से बहुत कम है, ऐसे बहुत कम ऐसे बहुत ब्लेटेंटली दिखाया भी नहीं दैट ओके उसको पसंद आ रहा है वो लड़का. बस 1-2 मोमेंट्स ऐसे जब वो बोलती है इट वाज वेरी सडन क्या आना है ऊपर जाके, बस वो 1-2 मोमेंट्स हैं. ऐसा कुछ बहुत रिप्रेजेंट नहीं करा है ऐसा लग रहा है ओके शी लाइक्स द गाय. बट तो बुक है, बुक हिज और हर में डिवाइडेड है. तो आई एम श्योर मे बी जो हिज और हर वाला एस्पेक्ट हो उसमें जो है उनके I mean internal, because a lot of the story happens inside the head of the characters, exactly. Right? And book में you explore the inside of the head of the character, which मतलब जिसमें even if the story is कि भाई affair हो रहा है और ये हो रहा है, not about other things, बहुत से emotions होंगे which like are not exactly like sexualizing the boy. They're also talk मतलब उसकी क्या journey रही है, वो क्या सोच रहा है, वो किस वजह से attract हो रहा है, बहुत सी चीज़ें होंगी ना. और वो मूवी में देर इज नो एक्सप्लोरेशन ऑफ दैट एट ऑल. देव जस्ट लिमिटेड इट टू हो क्या रहा है, और उस हो क्या रहा है में देर इज नथिंग, देर इज नो डीप रिप्रेजेंटेशन. यू डोंट गेट द चांस टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स डीपली. हाँ, तो फिर वो काफी सरफेस लेवल लगता है. तो इस वजह से वो सेक्सुअलाइज्ड भी लग रहा है कि अच्छा बस ठीक है, अ गे बॉय एक्सप्लोरिंग हिज सेक्सुअलिटी, बस that's it. But still because that's it, that is what is in his life, that's it. और एंड में जो होता है ना, एंड में सडनली उसे कोई प्रोग्राम मिल जाता है राइटिंग का एंड ही लीव्स. जो एंडिंग है उसकी, दैट इज ऑल्सो सो सडन. आई डिडंट इवन नो ही वाज दैट इनटू राइटिंग, या ही वाज दैट ट्राइंग टू. प्रोग्राम मिलता थोड़ा ना, ही इज फेकिंग इट ना, ही फेक्स इट जस्ट टू गेट अवे फ्रॉम हिज होम. अच्छा, हाँ उसको प्रोग्राम मिलता नहीं है, वो ही फेक्स इट बिकॉज ही वांट्स टू गेट अवे फ्रॉम होम एंड देन ही पेन्स डाउन द नॉवेल. उसको कोई प्रोग्राम मिलता नहीं है. ओके. तो मतलब आई मिसअंडरस्टूड. आई थॉट कि उसका जो प्रोफेसर होता है वो उसे रेकमेंड करता है और फिर लाइक द लेटर ही वांट्स फ्रॉम द प्रोफेसर इज रिकमेंडेशन. द प्रोफेसर रिमाइंड मी दैट वी हैव टू टॉक अबाउट नील भोपालन आल्सो. सो नील भोपालन इज हिज प्रोफेसर. जो तने है द प्रोटैगनिस्ट, ही इज अ लिटरेचर स्टूडेंट और नील भोपालन उसका प्रोफेसर होता है. एंड हिज प्रोफेसर इज आल्सो ऐसा ब्लेटेंटली ऐसा दिखाया नहीं है दैट ही इज आल्सो गे, बट येस यू अंडरस्टैंड दैट ही इज गे बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन तने. So yes, he does come out to be like creepy at points because he is making inappropriate because और also क्लास में ही उसके सर पे कंधे पे और ऐसे हाथ रख रहा होता है. उनका रिलेशनशिप भी है तो टीचर और स्टूडेंट का ही ना, तो yes it was inappropriate. बट लेकिन उसमें एक सीन है जब वो अपने घर में बैठा होता है एंड देन दिस तरह ही गोज टू विजिट नील भोपालन. वो अपने घर के हॉल में जो एक कमरा होता है उसमें बैठा होता है, और वो मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा बिकॉज एक तो लाइटिंग नहीं है, द कमरा इज वेरी डिंजी सा एंड द पूरा कमरा इज कवर्ड विद बुक्स. मतलब ऐसे स्टैक्स एंड स्टैक्स ऑफ बुक है, वो बस बीच में बैठा हुआ है. तो आई एम नॉट जस्टिफाइंग दैट हाउ इनअप्रोप्रिएट ही वाज. येस ही वाज इनअप्रोप्रिएट, बट दैट वाज द रीजन हिज इनअप्रोप्रिएट वाज coming from because he was so lonely and he wanted to find a companion. You could see in his character he was so lonely and he wanted to find a companion. So maybe that is why, like, this is how I will justify his inappropriateness.
हाँ, बट एक और चीज़ मुझे अभी बात करते हुए ख्याल आई अबाउट सेक्शुलाइजेशन इज़ कि दिस इज़ एन अगेन अ प्रॉब्लमैटिक representation, because if he is lonely and he knows that a student of his is also gay, right, the companionship doesn't have to be sexual, तो उनके he रिलेशनशिप doesn't में have ऐसा to कभी नहीं दिखाया दैट इट इज सेक्सुअल. उन लोग का ऐसा excuse क्या करता है yes it was, वो? मुझे they याद have तो a नहीं आ sexual रहा. relationship, क्योंकि तुमने मूवी बहुत टाइम पहले देखी है. दे हैव अ सेक्सुअल रिलेशनशिप. इनफैक्ट इन द एंड जब वो उसे बोलता है कि जो है लिख दो मुझे लेटर, तो एज कॉम्पेंसेशन ही इज़ रेडी टू स्लीप विथ हिम. और आई मीन द टचेस दे हैव और द हग्स दे हैव आर वेरी क्लियरली सेक्शुअल. इट्स वेरी क्लियरली शोन दैट दे आर इंटरेस्टेड. मतलब इट्स लाइक द सेम थिंग, यू नो. पता है कुछ कुछ आई थिंक हमने उसमें देखा था अभी हार्ट स्टॉपर में, या कि जब उसे वो जो गे कैरेक्टर होता है उसको वो करना होता है, तो या कि आई डोंट नो वो लड़की थी जिसको कोई कहता है या लड़के को कि ओ यू वर गे, तो वर यू लाइक हैविंग अ क्रश ऑन मी और वर यू लुकिंग एट मी इनअप्रोप्रिएटली, लाइक सेइंग कि ओ इफ यू आर गे, तो हर सेम सेक्स के इंसान के सामने आप जो है यू आर जस्ट सेक्सुअलाइजिंग देम. ठीक है, तो एंड दिस ट्रोप्स कम्स इन हियर कि मतलब जस्ट बिकॉज his student was gay, वो स्टूडेंट है उसका, देयर स्टिल अ रिलेशनशिप. लाइक व्हेन वी हैव ऑपोजिट जेंडर रिलेशनशिप्स, देयर नॉट सेक्सुअल, देयर आर लिमिट्स एंड लाइंस. तो जस्ट बिकॉज ही इज गे तो और वो गे है, तो क्या वो अपने स्टूडेंट को सेक्सुअलाइज करेगा? आई डोंट थिंक दिस इज गुड इनफ रिप्रेजेंटेशन. आई मीन देयर आर अ लॉट ऑफ वेज जिससे वो अपनी स्टूडेंट को कंपेनियन बना सकता है. About they could talk, it doesn't have to be sexual to cure his loneliness, but this is a I think if problematic way you're- in which queer people are portrayed कि अच्छा वो lonely होंगे तो वो ये मतलब that sexualization is all they look, sexual experiences are I all don't they're think looking it's for. about. I Which I'm sure it's understand not. the point. It's about sexualization, but also यार ये वापस आ गया. Sorry. मुझे वो दिख गया वापस. मैंने तो कल ही हटाया था. Anyway, it is not about sexualization because मतलब एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी तो होती है ना, इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी. एक innate need होती है फिजिकल इंटीमेसी. So when you were talking about those kind of touches, थोड़ा सा sexual intimate touches, so it is not just about कि चलो ठीक है आजा. It is about it is not about that. It is also about having that kind of comfort, having that kind of physical intimacy, which is so difficult for them to find anyhow. And this era we are talking about, ये है पुराना. तो अब तो फिर भी we know, अपने मम्मी पापा के भी they refuse to talk about it, but they still know that ऐसा exist करता है. They don't talk about it, they don't indulge in it, but they still know. उनको awareness तो है ना कि ऐसा कुछ होता है कि now the era we are talking about, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था. So it is not about कि every other gay person you find and you turn into a sexual relationship, not deliberately. You don't find anybody in the first place. So when you do find, so you want to have that kind of intimate relationship with that person, because वो that physical intimacy सबको चाहिए होती है. Because it's a basic human innate tendency है ना, that we want that kind of comfort. Lucky. I guess you can kind of empathize with the teacher character this way. हाँ, और also because I won't find that जैसे now I won't come to you to find that kind of comfort now. When you're seeking a partner that way, so you can only find that kind of comfort in a partner. So that is maybe one reason that okay, a lot of these relationships अपन movie में ऐसा representation होता है that okay, we feel that they are being sexualized in a way. But if you break it down to, I think this is also one reason that it is so difficult to find someone. It is so difficult to the same thing, find someone. So yeah. Okay, let's move on to the main character. And also, as in the हाँ, प्रतीक गवर्नर also उसकी बहन का कैरेक्टर कितना अच्छा बताया. I mean, I like the representation of उसकी बहन, and especially I want to talk about that scene. उसके बारे में पढ़ी थी तो मुझे वो सीन याद है, मैं भूल गई थी. वो एक सीन है जब वो उसकी बहन, तने की बहन, उसकी बहन की फ्रेंड जो नन होती है, और उनकी एक और फ्रेंड जो बाइक चलाती होती है. तो जब तीनों लड़कियां जब वो बुलेट पे जा रही थी,
आई डोंट नो वो मैच देखने जा रही होती है, कहाँ जा रही होती है, वो सीन मुझे इतना मस्त लगा था। नहीं, जो चला रही थी उसने सलवार कमीज पहनी होती हाँ है, हाँ हाँ वो हाँ, नन देयर ने इज अ अपनी पूरी सीन वो पहनी आई होती है। कांट, हाँ, एंड इट्स लाइक तीन मेजर religions also, so there's a Muslim girl and there's a Christian one and then the Hindu one and they're all three on the bike, और वो उसे On the भगा bike. रही होती है, आई थिंक या तो उसे घर पहुंचाने के लिए या उसे ट्रेन पहुंचाने के लिए, ट्रेन उसे भगा रही होती है, आई थिंक उसमें होता Oh, है, I think her इट्स वेरी गुड last- I सीन think, हाँ, और अबाउट movie या के scene- movie के अबाउट बीच में ऐसे फीमेल scene है। लाइक कनेक्शन एंड फीमेल बॉन्डिंग, और चलो तुम्हारा घर तुम्हें जुल्म कर रहा है तो हम भगा देंगे, दैट वाज रियली कूल, वो scene कितना आई रियली अच्छा है लाइक द लेकिन। पार्ट, हाँ yeah, it was really cool. So basically उसकी जो बहन का कैरेक्टर होता है, she is also like she is very different from normal, I don't think that is the way to say it, I don't think she's that heteronormative. Heteronormative नहीं होती because she is not like abiding by Why gender not rules, she heteronormative? keeps long short hair, क्योंकि जो जनरल एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि लड़की ऐसी होनी चाहिए और वो ऐसे करनी चाहिए, जेंडर रोल्स की, शी डिफाइज दोज, राइट, शी डजंट Especially लिव इन back अ in वेरी the era. फेमिनिन वे, हम्म। हाँ, तो अभी भी हम थोड़े बबल्स में रह लें, लेकिन अभी भी लाइक women are supposed to look a certain way and talk a certain way, तो she is like, she has short hair, she doesn't care about her body hair, she doesn't even know what a deodorant is and has to ask her gay brother कि तुम्हारे पास deodorant ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, but anyways you know, has no interest in like upkeep of her appearance ज़्यादा, you know, कि I think उसे moisturizer या भी लेती है, anyways, and she is into hockey and she wants to play hockey professionally, ठीक है, और उसके अम्मा अब्बा, और वो कपड़े भी ऐसे ही पहनती है कि उसने शॉर्ट्स पहनी हुई हैं, वो पहनी हुई है, थिंग्स शी प्लेज हॉकी इन, and her parents are okay with that until suddenly one day they're like, no, आई एम सॉरी, ये आपका बचपन था, ये खत्म, अब तुम्हारे बड़े भाई की शादी करनी है तो उसकी शादी करनी है, उससे पहले तुम कर लो, चलो बाल बढ़ाओ, लड़की लगो एंड जस्ट गेट मैरिड, एंड सडनली शी इज लाइक They force her to get married जब वो पहली उसके अफेयर के बारे में पता चलता है, उसके पहले शादी का इतना सीन वो उससे पहले उस पर प्रेशर डाल रहे होते हैं, इसीलिए तो भागती है, वो उससे पहले उस पर प्रेशर डाल रहे होते हैं, देयर इज अ कॉन्वर्जेशन एट द डिनर टेबल वेयर द ब्रदर इज लाइक कि हाँ बाल भी बढ़ा लो, इस तरीके से मत आना मेरी एंगेजमेंट पे एंड स्टफ लाइक दैट, सो व्हेन द प्रेशर कम्स शी रन्स अवे विद द अपस्टेयर्स नेबर, जो पता भी नहीं होता किसी को कि उसकी कोई रिलेशनशिप चल रही है उसके साथ, थोड़ी सी हिंट किसी को भी देते नहीं हैं पता होता, व्यूअर्स को भी नहीं पता, कितना सडनली पता चलता है, और जब एक बार मूवी में बोलते हैं ना कि उसके साथ भाग रहे थे, मेरे को लगता है, मुझे लगा था कि कुछ और होगा, लाइक शी जस्ट यूजिंग दैट एज एन एक्सक्यूज, और सच्ची में उसके साथ नहीं भागी होगी, हाँ, मेरे को ये लगा था, हाँ, आई थॉट कि वो गायब हो गया और वो भी गायब हो गई, तो दे फेल्ट कि जो है साथ भागे, बट दे एक्चुअली डू रन टू, और उसका कैरेक्टर भी काफी ऐसे से बताया है, मतलब आफ्टर सीइंग अ कैरेक्टर आपको ऐसा लगेगा नहीं कि अच्छा वो एक लड़के के साथ भाग जाएगी, बिकॉज शी इज बीन शोन टू बी दैट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कि अच्छा ठीक है ऐसा थोड़ा ना करेगी, तो वो मैच नहीं करता था स्टार्टिंग में, एकदम एंड में जब एकदम से पता चलता है कि हाँ उसके साथ ही भागी थी, इट वाज वेरी सडन फॉर मी आल्सो कि इसको क्या जरूरत पड़ी थी भागने की, और वो भी उसके साथ, बट लेकिन आई नो क्यों भागी, मतलब आई वुड एक्सपेक्ट, बट आई गेस दैट्स ह्यूमन, राइट, कि she hasn't had those experiences, she's probably never looked towards boys before क्योंकि she's too busy in her hockey, but she has, और फिर प्रतीक again, उसका भी वही है ना कि फर्स्ट और फिर आउट ऑफ एवरीवेयर प्रतीक बब्बर, मतलब यू हैव नो एक्सपीरियंस विद बॉयज और फिर आपके सामने प्रतीक बब्बर, और वो बंदा वैसे भी, और वो बंदा वैसे भी ही इज लैंग्वेज, वो वैसे भी एक एक्सप्लॉयटेटिव प्रेडेटरी बंदा होता है, ठीक है ना, ही इज taking advantage of both the vulnerable kids in the house. Yeah, that's true. I can't deny that. Yeah. ठीक है, the boy, the Tanay is vulnerable because and the girl is vulnerable. दोनों के पहले experiences हैं, दोनों lonely किस्म के लोग हैं. They do not fit into the society. They do not fit into the home, their home, and he's just there to offer them experiences which they've never had, and obviously those kids are attracted, and he takes advantage of both of them और दोनों के पास से भाग जाता है. और वो भी अपने टर्म्स पे करता है, when he is offering them comfort, जब उसकी इच्छा तब गायब हो जाता है, अपने काम करना चले जाता है, जब वापस आता है तो वो तने उसको घर पे उसका वेट करते हुए मिलता है, तो that is also it's a very on his own like अपने खुद की कंफर्ट के हिसाब से on and off.
हाँ, बहुत ही एक पावर डायनामिक इज क्लियर दैट Power ही इज dynamic, टेकिंग हाँ. एडवांटेज ऑफ देम. और इवन दो वो उसे छोड़ के भाग जाता है और वो घर आ जाती है, फिर भी शी इज़ लाइक शी स्टिल कांट सी कि भाई तुम्हें घर से वो भगा के ले गया. चलो फाइन, यू वेंट विथ योर ओन कंसेंट, और उसके अचानक गायब होने की वजह से यू हैड टू कम बैक होम यार, लेकिन बिकॉज ऑफ अभी विच तक देर आर मुझे नाउ लाइक novel- क्रेजी प्रेशर्स ऑन यू. ये मूवी ने बहुत ही ओपन एंडेड छोड़ा है. ये एक बार भी बताया नहीं कि हाउ डिड दैट हैपन, कि वो कैसे भागी थी, हाउ डिड शी एंड अप रनिंग विद हिम, और उनका रिलेशनशिप तो एक बार भी नहीं बताया है कि उन्होंने का किस तरह का रिलेशनशिप हाँ, था. ट्रू. ये काफी ओपन एंडेड छोड़ा है. द ओनली रिलेशनशिप वी गेट टू सी इज प्रतीक बब्बर एंड तनय. एक बार भी अपन उसको बहन का रिलेशनशिप तो अपन ने देखा है, तो वी डोंट नो वहां पे किस तरह के पावर डायनेमिक्स थे या किस तरह But का I am relationship था. gauging from the fact कि if you leave your home and run away, you know that going back is dangerous, right? You know that going back, जिस प्रेशर से आप भागे हैं, अगर आप वापस गए तो वो जो प्रेशर है that will intensify because you've now added another layer to your family, and that's like, oh my god, the girl ran away, which they hide, but obviously they're going to come harder. So basically when she ran away, she clearly wasn't wanting to come back. ये सोच के तो नहीं भागी होगी ना, दिस इज मी फिलिंग द गैप्स, हाँ, राइट? I agree, but कि ये तो still, छोड़ के नहीं how भागी did that होगी, end up happening? लेकिन she had to come back. She had to come back. That means that she was not expecting it. She was deceived. Simple सी बात है. I think she says also कि he was just not there one morning. Yeah, I'm not sure if I'm remembering it wrong. So basically, he's not somebody reliable. She can कि अच्छा, even if he like doesn't want the relationship, right? Because he's like कि भाई मैंने तो कभी कहा ही नहीं था कि we're going to live together or something like that. But you know somebody is running with you, you know their position, तो आप उससे relationship करें ना करें, you don't suddenly disappear on them that they're forced to come back. When I'm saying it is open-ended, it is open-ended also in the sense of the way कि यही हुआ था कि कुछ और हुआ था. That is नहीं, what I I'm want to just say. मैं सिर्फ अंदाजे मुझे लगा तो रही हूँ अपने from the novel fact that she की had to summary come back. Hmm. She had to come back, and that makes me feel like she didn't like, I don't think she would have planned कि अच्छा जहाँ तक जाएंगे फिर मैं वापस आ जाऊंगी, because that was a big risk that she took. And the fact that she had to come back means कि deceive तो हुई होगी, right? Like she didn't expect and didn't know what to do, so she had to come back. And when she comes back, it's clear उसे रूम में बंद कर देते हैं और उस पर वो होता है, ठीक है. So she, at that point, she is not also blaming him, because उसे भी उस वक्त कहानी नहीं पता होती ना कि वो तो उसका भाई उसे एंड में आउट ऑफ पेटीनेस और आउट ऑफ सम गुस्सा पिक्चर भेज देता है अपनी कि बेटा यू वर नॉट द ओनली वन इन्वॉल्व विद हिम. एंड सो क्रेजी. एक बंदा भाई बहन both दोनों of को, like आपका एक भाई बहन दोनों का एक ही एक्स रह चुका है. Imagine at the living same together. time, At and the this is same not time. like in different points in time. Imagine This is at taking the that same sibling time. bond आगे then. How do you get over it then? How? इतना But and also he is so hurt that he hurts his sister. मतलब उसकी बहन तो भाग जाती है ना. The guy is not there. In the end, she does a second attempt to run, and we have to discuss how amazing that is. Okay, she does a second attempt, she's successful, and she's gone. So this thing is not going to happen again. She's not there. He's not. The brothers and sisters have brother and sister have gone their separate ways. लेकिन वो इतना hurt होता है, I guess. I और वो know, मैं ये इतना he's like petty. उसका जो grief है वो कितना conflicted grief है कि एक तरफ तो you are grieving जो लड़का तुम्हें छोड़ के चला गया, और एक तरफ you also have the fact कि वही लड़का तुम्हारी बहन को भी पागल बना के गया, तो your बहन is in such a bad position now. So who do you feel bad for? अपने लिए, तुम्हारी बहन के लिए, अब तुम्हें छोड़ के चला गया, वो क्यों गया था? And he तो feels कितना bad conflict towards था. his sister. Bad towards his sister because he knows what it's like, but he also kind of is jealous of his sister कि तुम लेके गई थी मेरा बंदा, you know. He's like वही मतलब कितना, मतलब how do you, so कैसे, मतलब how do you even grieve properly? मतलब कितना मुश्किल है. And I guess that's why he does this thing. I mean, that's why I don't hold it against him कि ये बहुत ही petty सी चीज करता है, या he didn't have to hurt his sister. But I guess कि कुछ तो निकलना है ना, वो कितना दबाएगा अपने अंदर. He is hiding his identity, he is hiding his experiences, he has nobody to talk to about what happened, ठीक है.
and then at least his sister gets to talk about what happened to her, right? At least everybody knows that ये जो उसके साथ हुआ है वो हुआ है. She has friends. He has nobody to talk to about it कि ओ मेरे साथ भी ये हो गया. Like I was also in love with a boy who suddenly ran away with my sister. So I guess जब वो इतना दबेगा तो कहीं ना कहीं से तो आएगा, and that's what he does. He kind of like tells it to his sister through a picture, and maybe then she realizes what really happened to her wasn't कि oh there was a man who just introduced me to my sexuality और भले वो भाग गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. Maybe then she realizes that she was taken advantage of because she was taken advantage of. पर हाँ मतलब आई एग्री, बट आई थिंक वी शुड, मुझे नॉवल भी पढ़नी, एक तो नॉवल मराठी में पढ़ूंगी कैसे, बट उसकी समरी वगैरह पढ़नी. खैर इट्स द मूवी वी आर रिव्यूइंग, तो जितनी मूवी, अब मुझ जैसा बंदा तो जाके नॉवल नहीं पढ़ेगा. हाँ तो हाँ फिर भी आई चेक इट आउट. एंड आल्सो डू यू वांट टू टॉक अबाउट द सिस्टर की एक चीज रह गई कि शी यू नो शी इट इज हर फर्स्ट एक्सपीरियंस विद अ बॉय. हाँ, एंड ठीक है, शी गेट्स टेकन एडवांटेज ऑफ. इट मस्ट बी हेल कंफ्यूजिंग टू सी व्हाट हैपेंड कि पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर आ रहा है, चलो भाग जाती हूँ, फिर वापस आई, द वे दे आर ट्रीटिंग, एंड शी काइंड ऑफ गिव्स इन. एक दिन विग शिग लगा के तैयार भी होती है पूरी, यू नो. नाउ शी विग लगाना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर विग लगाना पड़ता है बिकॉज़ दे फोर्सिंग हर टू हैव लाइक लॉन्ग हेयर. और कितनी लंबी विग होती है वो, लॉ. खैर तो बट यू नो व्हेन यू आर सडनली, what happens to her is not a small thing. चाहे वो कहे कि अच्छा मेरी कंसेंट से हुआ था, ये वो जो भी हुआ था, it must be very confusing. It must shake you कि oh you know I attempted something and then I came back and now I'm forced, I have even stricter circumstances. तो normal, if you know, a person like me would be full of self doubt कि I made such a mistake. I trusted somebody who was not supposed to be trusted, ठीक है, and I left the comfort and safety of my home and then I was stranded. And you must be full of self-doubt about, okay, should I take decisions like this or should I just give in to my parents? Maybe they do know best. Lekin that girl is so strong that despite having first runaway attempt being a failure, she then has more faith and belief in herself and she runs away again, and this time she does it because of her career and her friend helps her, so she has the guts to do it again. This is the difference. जब वो पहली बार भागी तो किसी और पे डिपेंडेंट होकर भागी होती है, एक लड़के पे डिपेंडेंट होकर भागी होती है. जब वो दूसरी बार भागती तो शी इज मोर श्योर ऑफ हरसेल्फ बिकॉज़ वो खुद के भरोसे भाग रही होती है, ऑफ सेल्फ. और फिर तुम देखो अपनी सारी ज्वेलरी वगैरह, उसकी मम्मी की ज्वेलरी वगैरह भी सारी ऐसे अपने साथ लेके नहीं जाती है, सारी छोड़ के जाती है. हाँ, कहती है मुझे नहीं जरूरत. लाइक शी हैज सो मच फेथ इन हरसेल्फ. हाँ, she has so much faith in herself कि वो सारी ज्वेलरी निकाल के जाती है. So I think this is the reason. फर्स्ट टाइम भागने में, सेकंड टाइम भी भागने में, that why she's so confident. And also मुझे ये भी लगता है, but I mean there is still a lot of uncertainty, right? कि वो जा रही है किसी जॉब के बेसिस पे, अब उधर पहुंचे, ठीक है, this is the 90s, उसके पास व्हाट्सएप कम्युनिकेशन तो नहीं है कि वो कॉन्स्टेंटली अपडेटेड रहे कि जॉब पे क्या हो रहा है. व्हाट इफ शी गोज देयर एंड द जॉब डजंट वर्क आउट? व्हाट इफ शी गोज देयर एंड शी रियलाइजेस दैट शी कैन नॉट फुलफिल हर एक्सपेक्टेशन? देयर आर सो मेनी क्वेश्चन मार्क्स बिकॉज ऑफ विच अगर मेरे जैसा इंसान होता तो जितनी ज्वेलरी थी उससे ज़्यादा लेके जाता कि वो शिट, व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू सर्वाइव देयर, बिकॉज सेकेंड टाइम तो वापस नहीं आ रही. But she has so much faith in herself, and it's clear that she is not doing it out of any kind of prejudice for her parents, and she's not doing it out of any kind of rebellion कि oh मैंने दिखाना है. She's doing it for herself. कि okay, this is the only way I can live, right? She's not against somebody, she's for herself. और इसीलिए वो ये सब छोड़ के चली जाती है कि ठीक है भाई, नहीं तो नहीं, देख लूंगी. Like I will make it. That's why I love this character. वो इतना सडन नहीं लगता बिकॉज पूरी मूवी में बिल्डअप देख सकते हो उसका जो पैशनेट, like how passionate she is when it comes to hockey. बिकॉज पूरा टाइम हॉकी खेल रही होती है. जब स्टार्टिंग उसके दादा की डेथ के बारे में बताते तो भी वो हॉकी खेल रही होती है, और फिर उसको बुलाते तो वो खेल मैच बीच में छोड़ के आती है. दैट डज नॉट कम एज अ सरप्राइज कि हाँ वो पूरी मूवी में दिखाया है दैट ओके शी इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑल्सो, शी इज पैशनेट अबाउट हॉकी. और दूसरा पॉइंट आई हैव टू मेक है, जब वो वापस आती है एंड द वे हर पेरेंट्स ट्रीटेड हर, ठीक है, तो जैसे उसके पेरेंट्स के बिहेवियर में काफी डिफरेंस है ना, कि पहले तो काफी चिल होता है कि चलो ठीक है आप शॉर्ट्स भी पहन लो, आप छोटे बाल भी रख लो, हॉकी भी खेल लो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता. बिकॉज वो शॉक व्यूअर्स के लिए नहीं है, उसके लिए भी शॉक होता है कि मेरे पेरेंट्स पहले तो ऐसे नहीं थे. बिकॉज एक रिमेम्बर एक कॉन्वर्सेशन उसके फादर के साथ ये भी होता है जब वो उसके बड़ा भाई की शादी डिस्कस कर रहे होते हैं, तो आई थिंक हर फादर मेक समथिंग लाइक
दैट कि जब तुम्हें शादी करनी हो तभी करना, तुम्हारी मर्जी से शादी होएगी, समथिंग लाइक दैट. उसके फादर एक ऐसा कमेंट भी करते हैं. तो शी इज इक्वली शॉक्ड उसके पेरेंट्स के ट्रीटमेंट से एज वी, जितना वी आर शॉक्ड, बिकॉज उसने भी ऐसा इमेजिन नहीं करा होता है. तो आई थिंक दैट इज वन रीजन कि जो सेकंड टाइम भागती तो वाई शी इज सो कॉन्फिडेंट, बिकॉज उस टाइम पे उसके पेरेंट्स में उसका फेथ भी हिल चुका होता है, बिकॉज दे वर नॉट लाइक दैट बिफोर ना. उसको नहीं पता होता. हाँ, मतलब शीज द फैक्ट दैट शी कैन क्लियरली you know physically dress the way she wants to and be so much into hockey कि उस पे कोई रोकथाम नहीं थी. मतलब it wasn't like वो बचपन से they were like okay dress like this or do like that. ठीक है, she was allowed to be herself. so sudden और suddenly कि अब ऐसा नहीं, अब ऐसा करो. तो आई थिंक उसके पेरेंट्स भी काफी हिल चुके हैं जब वो भाग के वापस आई होती है, एंड तब तक उसको भी समझ में आ चुका था कि हाँ माय पेरेंट्स took it and what is the difference between what they were before and what they are now. तो ये मतलब वो चीज़ भी काफ़ी आई थिंक मोटिवेटिंग फैक्टर रही होगी कि हाँ मुझे क्यों निकलना है इस स्पेस से. एंड ऑल्सो वी हैव टू मेंशन हर फ्रेंड ऑल्सो. इसकी फ्रेंड उसकी जो वो नन होती है हु हेल्प्स हर रन अवे. आई थिंक हाउ शी गॉट दैट करेज टू हेल्प हर वाज बिकॉज शी वाज इन द सेम पोजीशन बिफोर एज हर, एग्जैक्टली सेम पोजीशन लाइक हर बिफोर. हाँ, the nun is not judgmental कि ओ तुम एक लड़के के लिए घर से भाग गई. So stupid. Like she's not judgmental at all. Because she gets it. I think she's had a similar experience. हाँ, I think शादी नहीं हो पाई होती है because वो लड़की की वो मैं भूल गई उसकी पूरी स्टोरी. Why didn't they get married? उसका एक वो नहीं अपना वो also what the story is. वो अलमीरा खोलती तो कोई पिक्चर दिखाती है I guess. वो पिक्चर होता है उसके कबर्ड पे पिक्चर चिपका हुआ होता है. तो आई डोंट नो व्हाई couldn't they get married, but she didn't choose nunhood out of her own choice. She was forced into it because certain things in her life didn't turn out as she wanted them to be. So she was in the position before जो अपनी उसकी friend की. तो I think that was one reason that why she understood the fact कि how important it is for her to get out of the situation. और वही उसको लेटर लिखने को बोलते हैं कि तुम लेटर लिख के भेजो, ये करो वो करो, यहाँ पे अप्लाई करो. She helps her get the job, she helps her run away. हाँ, तो सब कुछ वही फिगर आउट करती है एक तरीके से. रास्ते भगाती भी वही है फिर उसको. वही तो वो तीन लड़कियां जो you know the whole it's a very nice female friendship representation. I think बीच में भी ऐसा सीन है वो जो तीनों बुलेट पे फड़ करके जा रही होती हैं. वो काफी अच्छा सिंबॉलिक सा सीन लगा मुझे. It was very nice. Anything else to talk about? Is there something else we wanted to talk about? I'm sure there was और मैं भूल रही हूँ. Anyways, I think उसके फैमिली डायनामिक्स भी ना इस तरीके से दिखाए हुए हैं जैसे दादा दादी जो शुरू में दिखाते हैं. They're clearly living together, not in love at all. ठीक है. I think जब उसका दादा मरता है पहले, and it's so weird and it's like such a good representation of how weird marital relationships here are. कि when the grandfather dies, you clearly get to know that he was not a good husband. ठीक है. And yet the grandmother passes away on the same day as the grandfather. Such a weird twisted relationship that you know which is I think which does represent a lot of marriages, desi marriages, where the base of the relationship, the marriage वो अच्छी है या नहीं है या उसमें कितने मसले, nobody cares, but just because it's marriage तो वही शुरू है और वही आखिर है. Especially for the base of the relationship, like the base of the relationship की वो आदत पड़ी हुई होती है उनके एक दूसरे की. वो इतने साल से साथ में हो गए. Our marriages बहुत सी हमारी marriages are आदत. हाँ. और दूसरा also कि oh you know even if he was like abusive or something, sorry, even if he was abusive or something, उसकी इतनी आदत है कि वो आदत खत्म तो वो औरत भी खत्म. And once you reach that age, it is so difficult to get rid of that habit. And also तो twisted relationship मुझे काफी फैमिली का भी लगा, जो फैमिली डायनामिक है. बिकॉज जब दादा दादी मर जाते हैं सबका सबसे पहला कंसर्न क्या होता है तन्ने का कि वो कमरा मेरा. उसको और कोई कंसर्न नहीं होता. उसको होता है कि and you know that is so true. That I'm sorry but I've seen this is very true of a lot of हम जितना भी कहें ना oh family and oh bonding and all that, the thing is कि हम ये सब ज़बरदस्ती करते हैं. relationships हमारी actual अच्छी नहीं होती और हमने देखना भी नहीं होता because we're like oh हम relationships देखेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी. ठीक है. तो हम देखते हैं कि हम अंधों की तरह forcefully चलते जाते हैं. a lot of desi families, that's a reality of a lot of
या बिकॉज वी डोंट रियली लुक एट द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप, क्योंकि हमारे पर तो ये है कि भाई ये रिलेशनशिप है तो इसकी ये इंपॉर्टेंस होनी है, तो मतलब वो एक ज़बरदस्ती है ना, तो उसको आप क्या एक्सप्लोर करेंगे उस रिलेशनशिप को. और इट्स वेरी क्लियर कि जब वो मरते दोनों के दादा दादी, तो यू डोंट सी कि वो बहुत ज़्यादा कोई इमोशनली सारे हिल गए कि ओ माई गॉड व्हाट अ लॉस. और मे बी ऑल्सो आई थिंक हमारे पास लॉस को प्रोसेस करने के भी कल्चरली कोई खास मैकेनिज्म्स नहीं है. ट्रेनिंग, यू नो, वी डू नॉट शो इमोशन, we cannot show emotion, we cannot discuss about how it makes us feel ना हमारे. I used to think about this a lot. जैसे क्या होता है कि someone dies in your family, तो ना काफ़ी रिलीजन्स में ऐसा होता है, जैसे हिंदुज़म में ऐसा होता है दैट यू हैव लाइक अ 12-day बैठक. तो फॉर 12 days पीपल कम टू योर होम एंड दे ग्रीव विद यू. तो तुम देख रहे हो मतलब इन 12 days, दिस इज इमीडिएटली आफ्टर द डेथ, दिस इज इमीडिएटली आफ्टर द डेथ. तो तुम्हें कहीं भी ऐसा स्पेस नहीं मिल रहा है, इंडिविजुअल स्पेस नहीं मिल रहा है टू ग्रीव योर सेल्फ. यू ऑलवेज हैव पीपल अराउंड यू. तो हाँ, इसका लॉजिकल, जैसे मैं मम्मी से पूछी थी ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मम्मी बोलती थी बिकॉज यू नीड सपोर्ट. उस टाइम पे कम्युनिटी आपकी, दैट इज काइंड ऑफ ट्रू दो, दैट इज ट्रू कि आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली community is coming together and they're supporting you, so you don't have to be alone. But लेकिन फिर मेरा ये भी मानना होता है कि immediately after that एक बार भी आपको ये तो मौका मिला ही नहीं to grieve yourself, to process it yourself, because you are constantly surrounded by people. Reality hit नहीं करती आपको. Like I've been through this, right, losing both my grandfathers. तो there is definitely a positive aspect of it, क्योंकि suddenly there is such a void in your life कि जब लोग आ रहे होते हैं ना, हमारे यहाँ 2-3 दिन का होता है, तो कि जब लोग आ रहे होते हैं और मिल रहे होते हैं, that is very comforting because you don't have to suddenly look at that void. लेकिन जैसे ही वो जाते हैं, ठीक है, और वो void palpable होना शुरू हो जाते हैं, तो उस emptiness में बैठना बहुत मुश्किल होता है. तो kind of I remember when I was it, I was kind of grateful कि ठीक है at least कोई है तो सही. लेकिन एट द सेम टाइम मसला ये होता है कि वो इट्स वेरी, हमने हर चीज़ को बहुत ही क्या बना दिया है, रस्मी बना दिया है, ठीक है. तो यू नीड सपोर्ट अ लॉट ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर. इट्स जस्ट कि वो शुरू में इतना मिलके वो ख़त्म जब हो जाता है ना, तो यू आर फोर्स्ड, वो एक डिले आ जाता है टू फेस द रियलिटी कि वो इतने लोग हैं, तो आप अपने इमोशंस को मतलब इट डजंट हिट यू बट इट हिट्स यू लेटर. Someone else ना, because you are dependent on someone else to fill that void. So I'm not saying it's a bad thing to do. It is a bad thing to do, but as you are saying, but when you have to face it yourself, you don't know how to, because आपको always. और उस वक्त कोई सपोर्ट नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ फिजिकल प्रेजेंस तो होती है, लेकिन इमोशनल सपोर्ट का कोई सीन ही नहीं है. ठीक है. इट्स नॉट लाइक ओ somebody will sit with you and let you talk about that person if you want to talk about it. ठीक है. It's not like somebody will be like अच्छा ठीक है, we will have some kind of speeches about what that person meant to you. ऐसा कुछ भी नहीं होता. We just sit and avoid the issue altogether. Basically, या तो we pray. I have seen that happening for like हम लोग का ऐसा होता है. मतलब I am not like, मैं ये नहीं बोली बहुत ही बुरी चीज़ है, मतलब this is needed कि हाँ you can talk about the person, people talk with you also. And कभी-कभी it works the other way around, because when people are talking to you about that person, तो कभी-कभी आपने break लिया होता है, but अचानक से कोई आके बात करते हैं तो whole process starts again. So yes, you have that space, you have that time to talk about that person. So it works both the way. मैं ये नहीं बोलूँगी खराब है, अच्छा है, मतलब इट वर्क्स both the ways, और इंडिविजुअल डिपेंड. नहीं हाँ, आई एम सेइंग कि मेरे एक्सपीरियंस में ये रहा है कि मोर देन समबडी वांटिंग टू सिट विद यू एंड टॉक टू यू, दे आर जस्ट फिजिकली प्रेजेंट आउट ऑफ सम रस्म थिंग, राइट, कि अच्छा दिस इज हाउ थिंग्स आर डन. हाँ, तो आई फील कि उसका जो एसेंस है बहुत सी बार, the essence is just not there. The fact that you need people and the fact that we have these things के the people will be there, उसका essence नहीं है. वो सिर्फ they're just physically present. Nobody is emotionally really present there for you. That's what I'm saying. So yeah, this is a negative aspect that I'm also pointing out. Anyways, तो खैर उनके in the movie also you see कि everybody moves on very quickly because and more people are more interested in the room than they are in the grief that happens. Part of that might be emotional repression जो हमारे culture का हिस्सा है. Part of that might be कि the relationship, there really wasn't anything in the relationship. It was just because भाई grandparents हैं तो हैं, उनके साथ रहना भी है, उनको बर्दाश्त भी करना है, और जैसी भी relationship हो. एक और उनके पेरेंट्स की भी relationship बहुत ही messed up होती है.
बिल्कुल ही फर्स्ट सीन में ही आ जाता है, द फादर थ्रेटन्स द मदर कि बेटा मूव हियर, आई डोंट केयर कि स्कूल का साल बीच में लगा हुआ है या क्या है, मैं मूव किसी हियर और को विद इन ढूंढ 2 लूंगा. days, He said मैं किसी और को otherwise I will ढूंढ cheat लूंगा. on you, otherwise I will cheat on you, this is what he says. Okay, Welcome चलो, we had a good to episode. amazing family lives. Anyways, so let us know what you think about the episode. You close. वो episode तो मैं बंद कर चुकी हूँ. आशिक मैं भूल गई थी दिनों बाद अपन रिकॉर्ड. हाँ हाँ, सब भूल गई, तुम सब भूल गई. Anyways, close it. अच्छा, ओके, मुझे लगा तुम भी कर रही हो. Okay, you guys, that was us. Hope you liked the episode. And in the comment section, tell us if you have watched the movie, and if you have, did you like it? What did you like? क्या पसंद नहीं आया? And also we can discuss Pratik Babbar and his. That was us. Okay. Like, share, Bye. subscribe. Bye bye.